بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو ثالثہ۔ تو ہم لوگ مجموع کی بحث پڑھ رہے تھے اور اس میں یہ طریقہ سیکھ گئے ہیں کہ جمع کیسے بنائی جاتی ہے نا۔ اگر اس میں صحیح ہو تو اس کی جمع کیسے بنتی ہے؟ آخر میں واو اور نون بڑھا کر کے اس کی جمع بنا لیا جاتا ہے نا، جمع بنا لی جاتی ہے۔ اب ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں عمل منقوص۔ اگر اس میں منقوص ہو تو اس کی جمع کیسے بنائی جاتی ہے؟ اس میں منقوص کی تعریف کیا ہے؟ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل مقصور۔ جیسے کوئی مثال، جیسے القاضی، الداعی، الرامی، یہ سب بہت ساری مثالیں اس کی آپ کو مل جائیں گی۔ اس کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا کو حذف کر دیتے ہیں اور یا کو حذف کرنے کے بعد واو اور نون مفتوح لگا دیتے ہیں، اور جب یا حذف کرتے ہیں واو لگاتے ہیں تو چونکہ یا جب لگی تھی تو یا سے پہلے کسرہ تھا مین لفظ میں القاضی، لیکن جب ہم یا کو ہٹائیں گے واو لگائیں گے تو اب واو سے پہلے ضمہ رکھ دیں گے، کسرہ باقی نہیں رکھنے دیں گے، کیونکہ یا سے پہلے ضمہ اگر ہو تو وہ پڑھا نہیں جائے گا اور کافی ثقیل ہو جائے گا اور اس کو پڑھنے میں دشواری ہوگی۔ اسی وجہ سے اس یا کو حذف کرنے کے بعد جب واو لگاتے ہیں تو ضمہ لگاتے ہیں، لہذا ہے نا، اس کو سمجھتے ہو نا؟ لہذا القاضی سے کیا لفظ بنے گا؟ جمع کیسے بنے گا؟ القاضون، قاضون بنے گا۔ اور الداعی سے کیا بنے گا؟ داعون بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں مقصور ہے، اس میں مقصور جیسے مان لیجئے مصطفیٰ ہے نا، تو اگر اس کی جمع بنانا ہو تو یہ جمع کیسے بنتی ہے؟ اس کی جمع کیسے بنتی ہے؟ مصطفیٰ کی اگر جمع بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ یہاں جمع سے مراد چونکہ مصحح کی بات ہو رہی ہے نا، مصحح کی بات ہو رہی ہے، تو اب ظاہر ہے جب ہم جمع کی بات کریں گے تو جمع سالم ہی کی بات ہوگی، اور جب مکسر کی بات کریں گے تو اس میں جمع تکسیر کی بات ہوگی۔ تو چونکہ بحث چل رہی ہے والمصحح علی قسمین، مصحح دو قسموں پر ہے، مذکر، ابھی مؤنث کی بات نہیں آئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہم لوگ اس صفحہ نمبر 73 میں جمع مصحح مذکر کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بات دیکھ لو اور مؤنث بھی ہے نا، مؤنث یہ جمع ہوتی ہے، جمع مصحح مؤنث۔ تو دیکھو پیج کے صفحہ کے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے مذکر، اور اس صفحے کے سب سے نیچے لکھا ہوا سب سے آخر میں مؤنث۔ تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی نام آتا ہے تو اس نام کی تشریح کر دیتے ہیں، پھر دوسرا نام جب آتا ہے یعنی دوسری قسم اس کی جب آتی ہے تو اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اصل میں ایسے ہے، دیکھو صفحہ نمبر 72 کے سب سے لاسٹ میں دیکھو ملا صفحہ نمبر والمصحح علی قسمین، اور جمع مصحح دو قسموں پر ہے، مذکر و مؤنث، مذکر اور مؤنث۔ تو مذکر کہاں لکھا ہوا ہے؟ قسمین کے ترنت بعد مذکر لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد مذکر کا پورا بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے وہ مؤنث اور مؤنث، تب اس کے بعد مؤنث کا پورا بیان کریں گے۔ تو کہاں لکھا ہے مؤنث؟
देखो मुज़क्कर के नीचे लिखा है कि क्या लिखा है, अव्वलुहुमा मुज़क्करुन, और मुअन्नस के नीचे लिखा है तानीहुमा मुअन्नसुन, यानी उन दोनों में पहला मुज़क्कर है और दूसरा मुअन्नस है। तो वल मुसह्हहु अला क़िस्मैन, और जमा तसहीह दो किस्मों पर है, मुज़क्करुन व मुअन्नसुन, मुज़क्कर और मुअन्नस, है ना। अब मुज़क्कर कह करके मुज़क्कर का पूरा बयान कर रहे हैं, तो हम लोग मुज़क्कर जमा मुसह्हा मुज़क्कर बनाएंगे और वो इस्म सही होगा तब कैसे होगा, और मनकूस से अगर हम जमा मुसह्हा बनाएंगे मुज़क्कर तो वो कैसे होगा, इसे मखसूर से बनाएंगे तो वो कैसे होगा, इस पूरे का बयान इसमें दिया हुआ है। मैं पढ़ करके इसका तर्जुमा भी कर देता हूँ, ठीक है। अभी तो ऐसे सीख लो, एक बात जान लो इसमें, हाँ, तो अगर इसमें मकसूर हो तो इससे कैसे बनाएंगे वो तरीका सीख लिया। हाँ, मैं तरीका ही बता रहा था कि अलिफ को हस्फ कर देते हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया नहीं बता रहा था। अलिफ को हस्फ कर देते हैं और वाव और नून बढ़ा देते हैं, और अलिफ से पहले जो फतहा रहता है उसको छेड़ते नहीं हैं, उसको उसी ढंग पर बाकी रखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मुस्तफ़ा से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मुस्तफ़ौना, हाँ, मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ौना बनाएंगे। देखो अलिफ हज़फ कर दिया और अलिफ से पहले जो फतहा था उसको छेड़े नहीं, इस वजह से नहीं छेड़ते हैं कि ताकि अलिफ के हज़फ होने पर दलालत करे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप इसी मनकूस में ये भी कह सकते थे, तब वहाँ क्यों या से पहले जो कसरा थी उसे क्यों छेड़ दिया, उसे भी बाकी रखते ताकि या के महज़ूफ़ होने पर दलालत करे, है कि नहीं। हाँ, वाव से पहले कसरा को पढ़ना इंतहाई सकील था, इसी वजह से उसको हटा दिया गया। और जाहिर है जो आप लोग तालील पढ़ते होंगे तो तालील के कवायद ही इसलिए बनाए गए हैं, तालील और तख़फ़ीफ़ के, कि ताकि अरबी में जो अल्फाज कहने में दुश्वार मालूम होते हैं उनको आसान कर दिया जाए, इसीलिए बनाए गए हैं ना। तालील का पूरा कायदा इसी पर डिपेंड है ताकि दुश्वारी ना आए। वरना देखो यदऊना को जो असल में यदऊना है उसको यदऊना कहने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यदऊना कहने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी दुश्वारी होती है यदऊना कहने में, है ना। तो इसी वजह से तालील का कायदा बनाए। तो अगर इसमें या को हज़फ करने के बाद कसरा बाकी रखते तो ज़ाहिर है कितनी दुश्वारी होती, पढ़ने में काफ़ी। काज़ीउना वो कहीं नहीं मिलता, कह कर देखो उसको, अलकाजी से सिर्फ या काटो और वाव नून बढ़ाओ, फिर बोलो इसको अपनी ज़ुबान से अदा करो। काज़ीउना बहुत मुश्किल है ना, कह नहीं, मतलब जो एक रवानी है और आसानी है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो इसी वजह से वहाँ कसरा हटा करके वहाँ से पहले ज़म्मा दे दिया गया। लेकिन यहाँ अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, अलिफ से पहले वाले को फतहा जो है उसे बाकी रखा गया है, तो कहने में किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, कि होती है, लिहाजा नहीं होती, लिहाजा मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ाउन कर दिया गया। और एक बात जान लो, ये जो जमा मुज़क्कर सालिम बनाई जाती है ना, ये उक़ला या उनकी सिफ़ात से ही बनाई जाती है। यानी ऐसे अल्फाज की जमा मुज़क्कर सालिम बनाई जाएगी जो उक़ला पर दलालत करे। उक़ला जानते हो, देखो अरबी, हाँ, अरबी में कुछ चीज़ें आकिल पर दलालत करती हैं और कुछ चीज़ें गैर आकिल पर। तो आकिल और गैर आकिल का अरबी ग्रामर में बड़ा दखल होता है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे अल्फाज जो इंसान को बताएं, जिन्नों शैतानों को बताएं, फरिश्तों पर दलालत करें, तो
ऐसे अल्फाज क्या हैं? कहेंगे ये उकला है। अक्लमंद किनको मानते हैं? इंस है, जिन्न है और फरिश्ते हैं, ये सब कहते हैं कि ज़विल उकूल हैं, यानी इनके पास अक्ल है। लेकिन गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुर्सी, मेज, पेड़, घर, ज़मीन, ये सब चीज़ें, इन तमाम किताब, कापी, कलम, है ना, पंखे, इन तमाम चीज़ों को कहते हैं कि इनके पास अक्ल नहीं है। यहाँ तक कि जानवर जैसे हाथी, चींटी, बैल, गाय, बकरियाँ, ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं? उकूल में, ज़विल उकूल में कि गैर ज़विल उकूल में? ये गैर ज़विल उकूल में आती हैं। तो जो जमा मुज़क्कर सालिम जिस लफ्ज़ की जमा बनेगी उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो क्या हो? ज़विल उकूल, हाँ, वो ज़विल उकूल होने चाहिए। अगर वो लफ्ज़ गैर ज़विल उकूल पर दलालत करता है तो उसकी जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बनाई जाती है। लिहाजा अगर कोई आपसे कहे कि फ़रसुन की जमा बनाओ, तो फ़रसुन की जमा, अब देखो फ़र्स मुज़क्कर है कि नहीं? तो अब इसकी जमा अगर आपको बनाना है तो आप इसकी जमा मुज़क्कर सालिम बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम, हाँ बताओ, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम ऐसे अल्फाज की बनाई जाती है जो ज़विल उकूल पर दलालत करें, और जो अल्फाज गैर ज़विल उकूल पर दलालत करते हैं उनसे जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बनाई जाती है ना। अलबत्ता कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो जमा मुज़क्कर सालिम उनकी बना दी गई है और जमा मुज़क्कर सालिम के वज़न पर उनको ले आया गया है, हालांकि सही मानों में माने एतबार से जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है, तो कहेंगे ये सब शाज़ है ना। देखो, एक होता है कायदा बयान करना, और कभी कभी ऐसा होता है कि उस कायदे से कुछ चीज़ें हट जाती हैं, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं उस कायदे से, होता है ना, तो उसे बोलते हैं शाज़। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक आदमी के हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, तो हर कोई कहेगा कि 5 उंगलियां होती हैं। लेकिन जब आप अपने गांव में, अपने इलाके में देखोगे तो ये कायदा 100% फिट नहीं है कि आएगा। किसी के पास 3 हो सकती हैं, किसी के पास 6 हो सकती हैं। तो क्या अगर किसी के हाथ में आपने अगर 3 उंगली देख लिया या 6 उंगली देख लिया, तो आप ये कहोगे कि वो जो बात कही जाती है कि आदमी के एक हाथ में 5 उंगली होती है, वो बात गलत है? वो बात गलत नहीं है, बल्कि आप ये बोलेंगे कि 3 उंगली या 6 उंगलियां या 4 उंगलियों का होना ये शाज़ है, ये कभी कभार ऐसा होता है और इसका एतबार नहीं किया जाता है कि नहीं। तो मैं इसमें जो आप लोगों को कायदा बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जो जमा मुज़क्कर मुसह्हा ये जो जमा लाई जाती है, या किसकी लाई जाती है? ज़विल उकूल की जमा, या हम कह सकते हैं उलुल इल्म की जमा। उलुल इल्म माने इल्म वाले, ज़विल उकूल को उलुल इल्म भी कहा जाता है। तो ये उलुल इल्म की जमा लाई जाती है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे अगर मिल जाएं जो उलुल इल्म ना हो, लेकिन उनकी जमा मुज़क्कर सालिम के तर्ज पर जमा दिखे, तो आप कायदा गलत नहीं मानेंगे, बल्कि बोलेंगे कि कुछ अल्फाज हैं जो शाज़ तौर से आ गए हैं। जैसे सेनतुन की जमा सेनून कभी कभी ले आते हैं, अर्दुन की जमा अर्दून, और सुबतुन की जमा सुबून, और क़िलतुन की जमा क़िलून या क़ुलून ले आते हैं। देखो, सेनून के माने साल होते हैं, अर्जून के माने ज़मीनें होती हैं,
सुबून के माने जमातें होती हैं और क़िलून के माने जो गिल्ली डंडा होता है वो होता है ना, जो बच्चे खेलते हैं। इसमें से कोई ज़वील उकूल है, लेकिन जो इनकी जमा लाई गई है वाव और नून के साथ लाई गई है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? कहेंगे ये सब शाज़ है। शाज़ समझते हो किसे कहते हैं? शाज़, शाज़ बोलते हैं जो आम कायदे से हटकर हो। किसे कहते हैं? जो आम कायदे से हट करके हो। अच्छा चलो, अब सफ़ा नंबर 73 का मैं तर्जमा कर दूं। इसको मैंने समझा दिया, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब मैं इसका तर्जमा कर दे रहा हूँ। किताब को खोलो और उसको ठीक ढंग से देखो। वल मुसह्हहु अला क़िस्मैन, मिली इबारत? वल मुसह्हहु अला क़िस्मैन, और मुसह्हा यानी जमा तस्हीह, जमा सालिम दो किस्मों पर है। मुदक्करुन नंबर 1 मुदक्कर, वहुवा मा उल्हिक़ा बिआखिरिही वाउन, और मुदक्कर यानी मुसह्हा मुज़क्कर क्या है? वहुवा मा उल्हिक़ा बिआखिरिही वाउन, वो है जिसके आखिर में वाव लगा दिया गया हो। मज़मूमुन मा क़ब्लहा, और उस वाव से पहले ज़म्मा हो, वाव लगाया गया हो और उस वाव से पहले ज़म्मा हो, ठीक है। व नूनुन मफ़तूहतुन, और नून मफ़तूहा लगाया गया हो। उसकी मिसाल ये है, यानी वाव लगाया गया हो और नून मफ़तूहा, लेकिन वाव से पहले ज़म्मा हो। उसकी मिसाल है जैसे मुस्लिमून। औ याउन मकसूरुन मा क़ब्लहा, या लगाई गई हो जिससे पहले कसरा हो। वही जैसे मुस्लिमून लगा, मुस्लिमूना कहें या मुस्लिमीना, तो अब जाहिर सी बात है आप हालत नसब और हालत जर में उसे क्या कर देंगे? या कर देंगे, और जब या कर देंगे तो या से पहले या के माकुल मकसूर हो जाएगा, है ना। और नून तो वैसे ही रहेगा, नून जैसे है वैसे ही रहेगा। व नूनुन कज़ालिक, और नून वैसे ही, यानी मुख्तलिफ हालतों में खाली वाव बदलेगा। वाव कभी रहेगा हालत रफ़ा में और हालत नसब व जर में या रहेगा। इससे ये बात समझ लीजिए कि अगर जमा मुज़क्कर सालिम वाव के साथ कहीं दिखता है तो हालत रफ़ा में है वो, और अगर या के साथ कहीं दिखता है ये जमा तो हालत नसब में है या हालत जर में है। अब देखोगे अगर मंसूबात में से कुछ है तो हालत नसब में मान लिया जाएगा, और अगर मजरूरात में से कुछ है तो हालत जर में। इसके सबसे आसान पहचानने का तरीका यह है कि देख लो वो उसके ऊपर अगर हरफ जर हो या वो मुज़ाफ़ इलैह हो, अगर इन दोनों में से कोई एक बात है तो हालत जर में होगा। और अगर इन बहुत आसान है जानना, और अगर इन दोनों में से कोई एक बात नहीं है तो हालत नसब में आंख बंद करके उसको मान लो, है ना। वो मंसूबात में से कुछ है। ज़ाहिर है आपने मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात पढ़ रखा होगा, और जब आप चेक करेंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्यों वाव नून लगाया जाता है? लियदुल्ला अला अन्ना मअहू अक्सर मिनहु, ताकि वो लफ्ज़ बताए कि उसके साथ उससे ज़्यादा है। भाई वाव नून लगाने से वो लफ्ज़ ये बताने लगता है कि हमारे साथ एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं। जैसे मुस्लिमून है ना, अब आपने इसके साथ वाव नून लगा दिया तो ये पता चलता है कि अब ये इसके साथ एक मुस्लिम से ज़्यादा लोग हैं, यानी कई मुस्लिम हैं। जैसे मुस्लिमीन। वहादा फी सहीह, ये कह रहे हैं सहीह में क्या सहीह, क्या यानी ये जो वाव और नून खाली लगाने वाला कायदा है, सीधा सीधा कायदा जमा मुज़क्कर मुसह्हा बनाने का, ये इसमें सही में चलेगा जिसके आखिर में हर्फ इल्लत वगैरह ना हो, ठीक है। अम्मल मनकूस, बहरहाल इसमें मनकूस, फतुहज़फ़ु याउहु, इसमें मनकूस जो हैं तो उसकी या को हज़फ कर दिया जाएगा। मिसल काज़ून व दाऊन,
अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि उससे पहले वाले को ज़म्मा दे दिया जाएगा, क्योंकि मिसाल से ये बात आप समझ लीजिए, मिसाल से ये बात समझ लीजिए। वल, अब इसे मनकूस का कायदा हो गया, वल मकसूर, और इसमें मकसूर से कैसे बनेगा, युहदफु अलिफुहु, उसके अलिफ को हज़फ कर दिया जाएगा, नहीं उसके अलिफ को हज़फ कर दिया जाएगा जी। वयबका मा क़ब्लहा मफ्तूहन, और उससे पहले वाला फतहा बाकी रहेगा, लियदुल्ला अला अलिफिन महज़ूफ़तिन, ताकि वो महज़ूफ़ अलिफ पर दलालत करे, जैसे मुस्तफ़ौर, क्या कहा, जैसे मुस्तफ़ौन, हाँ तो मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ौर। और आगे देखो लिखा है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जमा मुज़क्कर मुस्साहा ये ज़विल उक़ूल पर दलालत करने वाले अल्फाज की ही बनाई जाती है, तो इसको लिख दिया व युख़्तस्सु बिउलिल इल्म, और ये जमा ख़ास की जाती है उलुल इल्म के साथ, यानी इल्म वालों के साथ। आप इसके नीचे देख रहे होंगे लिखा होगा ज़विल उक़ूल, यानी ये ज़विल उक़ूल के साथ ये जमा खास की जाती है। ठीक है, आज इतना ही। अब इसको तुम लोग पढ़ोगे, समझोगे, और इबारत से पढ़ करके भी समझोगे, फिर आगे और बताऊंगा कि इस और किस किस चीज़ से जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बन सकती है। ठीक है, आगे वही बातें आ रही हैं, कुछ शर्तें हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।